اہل عذاب عزا کے دن السلام علیکم ناظرین، میں سید الفقار حسین جعفری قائب ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر سب سے جو مین ایونٹ ہے وہ ہے حج۔ اس کے بعد ہمارے لیے عید غدیر کا ایونٹ ہے، اس کے بعد عید مباہلہ کا ایونٹ ہے۔ انشاءاللہ عید غدیر اور عید مباہلہ پر بھی ہم پروگرام پیش کریں گے، مگر آج ہم یہ پروگرام حج کی مناسبت سے پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مہمانوں میں سید اصغر عباس جعفری صاحب، سید حیدر رضا شیرازی صاحب اور سید عباس حسن بلگرامی صاحب۔ یہ تمام حضرات کا تعلق یہاں پر ہے، ٹورنٹو جی ٹی اے سے ہے، مگر یہ تمام حضرات مستقبل میں سعودی عرب میں رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، وہاں کی زیارتیں بھی کی۔ تو ہماری نظر میں یہ لوگ بڑے پرفیکٹ ہیں کہ جو ہمیں سعودیہ کے بارے میں، وہاں کے حج کے بارے میں اور وہاں کی زیارتوں کے بارے میں دوسری معلومات فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اصغر جعفری صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو اصغر صاحب، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سعودی عرب میں رہے اور کہاں رہے، اور آپ نے سعودی عرب میں رہنے کے دوران اندازاً کتنے حج کیے؟ السلام علیکم کل مومنین مومنات اور حاضرین ناظرین کو، اور تمام صاحب موجود ہیں پروگرام میں۔ ذوالفقار بھائی، میرا سعودی عرب میں قیام تقریباً 18 سال رہا، اور میں نارتھ میں شمال کے الجوف جو صوبہ ہے وہاں مقیم رہا۔ فارمیسی میں میری جاب تھی، میں فارمیسسٹ کے حیثیت سے میں نے کام کیا۔ وہ جارڈن کے بارڈر کے پاس یہ علاقہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے 3 دفعہ حج کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ۔ اور تینوں دفعہ میں نے حج جو کیا وہ بائی روڈ اپنے ہی وسیلے سے کیا، اور کیونکہ میرے شہر سے مدینہ 1100 کلومیٹر اور مدینہ سے ہم پرانے روٹ سے گئے ہیں تو وہ تقریباً 600 کلومیٹر پڑتا تھا۔ تو اس طرح ہمارا جو طویل راستہ ہوتا تھا تو ہم نے اس طرح حج کیا۔ انشاءاللہ آگے آپ سے بات ہوگی۔ ضرور۔ اب میں شیرازی صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو شیرازی صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ سعودی عرب میں کہاں رہے، کتنے سال رہے اور کتنے حج کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ذوالفقار بھائی، میں 92 سے لے کے 98 تک جدہ میں رہا، سعودی عرب کے جدہ میں رہا، اور الحمدللہ ان تمام سالوں میں ہر سال حج فریضہ ادا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم الحمدللہ وہاں سے جدہ سے پورا حج کا کاروان لے کے چلتے تھے، جو ایز اے گروپ جدہ کے جو مقیمین تھے ہم لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور الحمدللہ مطلب ہر سال حج کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی، اور ماں اہل و عیال کے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو میں اب یہی سوال حسن بلگرامی صاحب کے پاس رکھتا ہوں کہ کتنے عرصے رہے آپ سعودی عرب میں اور کتنے حج کیے آپ نے؟ ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ آنکھوں کے سامنے ذہن میں ایک وہ فلم دوبارہ چل گئی، اور عجیب ہمارا پروگرام کا نام ہی یادیں ہیں، ہم تو یادوں کو کریدتے ہیں، بس یہی اس جی بس کیا بتائیں، مطلب ریئلی اب یہ شیرازی صاحب نے بتایا اور اصغر صاحب نے بتایا تو ایک عجیب عقیدت کا وہ احساس ہے، اسی دور میں پہنچ گئے۔ میں 1982 سے لے کے 94 تک سعودی عرب میں رہا، 12 سال۔ تو
وہ حج وہاں پر ماشاءاللہ سے 2 مرتبہ کیا. ایک تو 82 ہی میں کر لیا تھا جس سال پہنچے تھے. اس وقت ہمارا اقامہ بس تازہ بنا تھا اور اسپیشل فلائٹس چل رہی تھیں الخبر سے، دہران ایئرپورٹ سے، تو وہ پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر آخری حج جو ہے وہ 93 میں کیا، واپس آنے سے 1 سال پہلے. ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ. مقابلتاً بڑے منظم طریقے سے ہوا. اور مطلب بس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے یہ سعادت نصیب کی. ماشاءاللہ بہت یہ فضیلت ہے کہ آدمی ایسی سرزمین پہ اپنی روٹی روزی سے بھی منسلک رہے اور ثواب بھی حاصل کرتے رہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں جو آفیشلی حج کے دوران کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ آفیشلی وہ میرے خیال سے 1 ہفتے تک کی چھٹی ہوتی ہے. اور پھر اگر کوئی زائر حج پہ گیا ہو تو اس کو تھوڑی سی اور فلیکسیبلٹی ملتی ہے. جی تو میں نہیں صحیح ہے، اس کا مطلب ہفتے میں لوگ حج کر سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ مین جو ہے وہ تو سارا طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ کے درمیان، شیطان کو کنکریاں، عرفات میں قیام، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا 1 ہفتے کا عمل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بغیر علماء کے، بلکہ لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ علماء کے بغیر حج کو آپ سر انجام دے تو سکتے ہیں مگر اس میں کمی بیشی رہنے کا اندازہ ہے اور کسی ارکان کو چھوٹ جانے کا اندازہ رہتا ہے. تو آپ لوگ جو سعودی عرب، میرے جیسے شیرازی صاحب نے فرمایا کہ آپ تو پورا قافلہ بنا کے چلتے ہیں وہاں سے جدہ سے، تو ظاہر ہے جب جدہ سے آپ چلتے ہوں گے تو وہاں سے کوئی مولوی بھی آپ کا ساتھ ہوتا ہوگا. تو آپ لوگ جو ہے نا مولوی جو آپ کو حج کراتے ہیں، حج کے ارکان آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ کہاں سے ارینج ہوتے ہیں آپ کو؟ بھائی میں اپنا اگر آپ کو تجربہ بتاؤں تو پہلا حج تو یہ تھا کہ خود حد درجہ بے یقینی تھی کہ یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. جب وہاں پہنچے تو جدہ پہنچے اور جدہ سے احرام پہن کے ڈائریکٹ مکہ پہنچ گئے اور چند مطلب طواف کرنے کے بعد پھر وہاں اتفاق ہے، خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کا ایک گروپ تھا، اس کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پھر وہ ساتھی رہے ان کے تا دیر تک. تو یہ معلم اگر ہو تو یہ ایک بہت بڑی مطلب آسانی رہتی ہے اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ معلم کا حج میں جانے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو آپ لوگ مطلب یہ ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں مومنین، جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی قافلے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تاکہ معلم کی سہولت بھی ان کو رہے اور حج کے ارکان بھی پوری طرح انداز. تو حج کا جو سب سے پہلا رکن جو ہے حج پہ جانے کے لیے یا عمرے پہ بھی جانے کے لیے کہ ایک جگہ کہلاتی ہے میقات. تو یہ عباس بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ میقات کیا ہے اور کتنی جگہوں پر ہے، کیا چیز ہے یہ میقات؟ شیرازی صاحب اس کا صحیح جواب دے سکیں گے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ جدہ میں رہیں، لیکن میں جو آتا رہا مدینہ سے، تو مدینہ سے بیر علی ہے میقات. تو ہم اس میقات سے جو ہے احرام باندھتے تھے اور وہاں سے پھر ہم مکہ کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے. تو دوسری چیز شیرازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. جی میقات ذوالفقار بھائی، میقات اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں. جو لوکل ہوتے ہیں وہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں. اور اتفاق ہے کہ میقات 5 ہیں اور ہر میقات جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت جو ہے وہ امام علی کے ساتھ منسلک ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلی جس سے جعفری صاحب بتا رہے تھے، اصغر جعفری صاحب جو بتا رہے تھے، مسجد شجرہ کہلاتی ہے. بیر علی وہاں پہ وہ کنواں موجود ہے جو حضرت امام علی نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا، جس سے ابھی کچھ سال پہلے تک پورا مدینہ فیضیاب ہوتا تھا، پانی وہیں سے پیتے تھے. جی. اور دوسری جو ہے اسی راستے میں وہ غدیر کے مقام پہ ہے جسے جوفا کہا جاتا ہے.
जी 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 जी। तो जोफा से भी आप एहराम बांध सकते हैं। हम जो लोग जद्दा में रहते थे, हम नॉर्मली जोफा से एहराम बांधते थे, क्योंकि जोफा की जो फजीलत है, वो जोफा दरअसल गदीर खुम का मैदान है। हाँ। तो ये गदीर खुम की जगह है, ये फजीलत भी इमाम अली के साथ मुंसलिक है। और तीसरी जो मिकात है वो ताइफ में है, लेकिन ताइफ जाने के लिए चूंकि मक्का को क्रॉस करके जाना होता था और बगैर एहराम बांधे आप मक्का की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते, तो बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था जद्दा वालों को। इसलिए सबसे बेहतर जो मिकात थी वो जोफा की मिकात होती थी। तो जोफा की मिकात से एहराम बांधते थे। तो मिकात का ये है। और जद्दा से कौन सा मिकात का पड़ता है? जद्दा से जब आप जद्दा जाते से हैं सबसे आसान मिकात जो है वो जोफा यानी गदीर खुम पड़ता है। अच्छा। कितने फासले पे शिराजी साहब वो जद्दा से? तकरीबन 80 किलोमीटर के करीब है, 80 से 100 किलोमीटर के करीब है। मुख्तलिफ रूट हैं उसके। तो मैंने सुना है कि मिकात है, वो फासला भी एक है जो जरूरी है, जहां पर आपको एहराम बांधे, और मुख्तलिफ जगहों से जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए मुख्तलिफ मिकात के मुकामात हैं, और उन सब का जी हाँ, जिस तरह मदीना से आने वालों के लिए मस्जिद शजरा है। जी। और जो जद्दा वगैरह से जो लोग जाएंगे, इस एतराफ से जो लोग जाएंगे, उनके लिए जोफा का मुकाम है, जो कि गदीर खुम का मुकाम है। और जो लोग ताइफ या उस साइड से आते हैं उनके लिए ताइफ का मिकात है। और मक्का वालों के लिए भी तो है? मक्का वालों के लिए मिकात नहीं है, मक्का वाले अपने घर से एहराम बांध सकते हैं। मस्जिद है वहाँ पे, मस्जिद आयशा या मस्जिद तमीम कहा जाता है उसको। तमीम जी, मस्जिद तमीम है। मस्जिद तमीम जो है वो जब आप पहला उम्रा कर चुकते हैं और आपने दूसरा उम्रा अगर करना है, किसी भी चांद में अगर आप जाते हैं, तो अगर आपको दूसरा उम्रा करना है तो आपको जो एहराम दोबारा बांधना है वो जाके मस्जिद तमीम से बांधना होगा। जी। हम लोग जब जाते थे उम्रा करने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर हम 30 ज़िलक़ाद को पहुंचे हैं या 30 शव्वाल को पहुंचे हैं, तो हमने एक उम्रा शव्वाल का कर लिया। शव्वाल का उम्रा करके जब रात में हम फारिग हुए, तो अब हम दोबारा अगर उम्रा करना चाहेंगे तो वो ज़िकात का उम्रा होगा। तो ज़िकात का उम्रा हम बगैर एहराम की तजदीद के नहीं कर सकते हैं। अच्छा। एहराम बांधने के लिए दोबारा मस्जिद तमीम जाना पड़ता है, जो कि मस्जिद तमीम जो है वो खाना काबा से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहां से नॉर्मली ट्रांसपोर्ट मिल जाती है मक्का के बाहर से ही, हरम के बाहर से। वहां से आप जाएं, एहराम बांधें और एहराम बांध के दोबारा उम्रा करने के लिए आप आ सकते हैं। बहुत उम्दा, आपने बड़ा वजाहत से बताया। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, तो बस अभी आए, आप प्रोग्राम देखते रहिए। अगले अज़ा के दिन जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी शिराजी साहब हमें मिकात के बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे, तो अब मैं असगर जाफरी साहब की तरफ जाऊंगा। असगर भाई, ये बताइए कि वहां पे आपको जाहिर है कि हज में सारी दुनिया के मुसलमान वहां जमा होते हैं, तो वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल कैसे हल करते हैं, जबकि खास तौर पर हमारे लिए ये हुक्म है हमारे फ़िक़े में कि हमें खुली गाड़ी में जाना होता है, तो क्या सिलसिला रहता है उन मसाइल का? ज़ुल्फ़िकार भाई, जहाँ तक सवाल आता है कि सफ़र करने का, तो जब हम एहराम बांधते हैं, मदीने से मक्के के लिए रवाना होते हैं, तो उस वक्त आक़ा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक हम रात को सफ़र कर सकते हैं।
बगैर छत वाली गाड़ी के साथ। अच्छा 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 अच्छा, बगैर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ज़ाहिर बात है खुले गाड़ियों की, ऐसी बगैर छत की गाड़ियों की जो है इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। तो ज़्यादातर मगरिब की नमाज पढ़ के एहराम बांध के फिर हम वहाँ से रवाना होते हैं। और इसी तरह जब हमें मक्का पहुंचने के बाद अगर हमें दूसरा तीसरा उम्रा करना होता है तो मस्जिद तमीम जाने के लिए फिर हम मगरिब के बाद का वक्त ही चूज करते हैं, या फिर हम ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जो कि खुली गाड़ियां मिल जाती हैं, जैसे वो 4x4 होती हैं, वो जैसे वहाँ पे दब्बावा कहते हैं, हाइलक्स कहते हैं उसको, तो वो मिल जाती है, तो उसमें आप पीछे बैठ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप मगरिब के बाद सफ़र करें तो उसमें आपको ये मसला नहीं होता। लेकिन अच्छा, तो ये एक चीज वाज़ेह हुई आपकी बात से कि अगर दिन में हम सफर करते हैं तो वो खुली गाड़ी में करना पड़ेगा, और जब हम रात को सफर करेंगे तो वो कंडीशन खत्म हो जाती है। जी, आपका सिस्तानी के मुताबिक। अच्छा 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 अच्छा। तो बिलग्रामी साहब, मैं अभी असगर भाई बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि आप लोग तो सऊदी अरब में ही रहते हैं, वहीं पे आपने आ गए, वो परेशानियां नहीं है वीजे की और पासपोर्ट की और वो सारा। तो मुझे ये बताइएगा कि आप हज का तो एक अमल है, वो तो करना ही करना है, तो उसके बाद मक्का और मदीना में जो अतराफ की ज़ियारतें हैं तो वो उस दौरान आप करते हैं या नहीं, या सिर्फ हज करके आप वापस आए थे? क्योंकि आप यूज टू होते हैं कि पहले कर चुके होते हैं उन ज़ियारतों को, मगर मैं सिर्फ इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि चूंकि वो एक बड़ा रूह परवर मंजर होता है, वो दिन होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है कि हम अपने भी जो ज़ियारत के मकामात हैं उस पर जाएं। तो जी फरमाइएगा आप। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ख्वाहिश तो ये होती है। अब हर आदमी का इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजुर्बा है। कितना वक्त अवेलेबल था उस हज के अमल के दौरान, तो चूंकि मैं इत्तेफाक से दोनों मरतबा सीधा पहुंचा अपने जद्दा, और जद्दा से एक दफा गाड़ी से पहुंचे तो ताइफ से होते हुए पहुंचे, तो और वापसी में भी चूंकि बुकिंग थी तो तवाफ अलविदा और तवाफ निसा के फौरन बाद फिर वापसी का सफर शुरू किया। लेकिन यह है कि अरफात में जब थे और मिना में उसके अतराफ जो कुछ ज़ियारत हैं वो मिना अरफात के करीब गारे हिरा है, वहां पर जाने का, वो पहाड़ी ऊंची है, उस पर जाने का मौका मिला। तो मैंने जब वैसे तो ज़ियारत बहुत की मदीने के अतराफ भी और मक्के के अतराफ भी, लेकिन इत्तेफाक से दोनों मरतबा जब हज के सिलसिले में जाना हुआ तो बस वो गारे हिरा के किया, बस इसके अलावा मौका नहीं मिला, ज़ियारत नहीं मिला। जाहिर है कि आप लोगों को एक हफ्ते की तो छुट्टी मिलती होगी, तो जाहिर है एक हफ्ता पूरा हज के दौरान ही गुजर जाता होगा। अब मैं शिराजी साहब के पास आता हूँ, तो यूं कि मुझे असगर भाई ने कह दिया है कि शिराजी साहब, आप दोनों के से ज्यादा शिराजी साहब के पास मालूमात है। सुने शिराजी साहब से मेरा जो सवाल है वो बड़ा टिपिकल भी है और वो भी। शिराजी साहब, मुझे सिर्फ इतना फरमाइएगा कि हज के आसान तरीन और मुश्किल तरीन अरकान कौन से हैं? हज में अगर आदमी अपने आप पर हज को सवार ना कर ले और हज को एक खुशूसलूबी के साथ अदा करे तो हज में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन जब चूंकि जैसे ही आदमी सबसे पहले पहुंचता है तो सबसे मुश्किल तरीन काम जो होता है वो उम्र तमत्तो का करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उस वक्त आदमी एक तो रास्ते के सफर से थका हुआ होता है और टाइम लिमिट भी होती है उसमें, क्योंकि आपको 8 ज़िलहज को आपको उम्र तमत्तो कंप्लीट कर लेना है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो उसी वक्त उम्र कर रहे होते हैं। तो तवाफ भी जो है वो भी पूरा फुल कैपेसिटी में हो रहा होता है, और इसी तरीके से जो सफ़ा और मरवा की सही है वो भी
फुल कैपेसिटी में हो रही होती है, और इस वजह से जो है वो उसमें ज्यादा थकन महसूस होती है। लेकिन उसके बाद के अरकान जो हैं वो चूंकि आदमी थोड़ा सा गैप दे के, थोड़ा सा टाइम दे के कर सकता है, तो वो ज्यादा सहूलत से हो जाते हैं। सहूलत से हो जाती है। तो बस मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये जो नए हज पे जाने वाले लोग हैं उनको जहन में रखनी चाहिए कि वहां पे हमें मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, आसानियां भी हो सकती हैं। तो अब शिराजी साहब से मेरा ये सवाल है कि जब वो जद्दा से जाया करते थे उम्रा करने या हज करने के लिए, तो वो सवारी का कैसे बंदोबस्त करते थे, क्या उनका तरीक़ाकार था? उसमें हजरत जाफी साहब इस तरह होता था कि हम लोग बसेस रेंट करते थे और हम लोग जद्दा से निकलते थे असर और मगरिब के असर के बाद जब हम वहां से निकलते थे तो हमें मगरिब की नमाज जो है हम बाजमात, या मगरिब की नमाज जो है हम अदा करते थे जोफा में जाके, मीकात जो है, मीकात पे हम गुस्ल करके एहराम बांध के नमाज अदा करके, एहराम की 2 रकत नमाज अदा करके, और फिर हम लोग वहां से ताज़ादम होके हम लोग वहां से निकलते थे, क्योंकि हमारा टारगेट ही होता था कि हमें सुबह फजर से पहले सूरज निकलने से पहले हमें हदूद मक्का में दाखिल हो जाना है। क्योंकि अगर हम हदूद मक्का में दाखिल ना हो सके तो जितने मर्द हजरात होंगे उनके ऊपर बकरे का दम आ जाएगा साया होने की वजह से। तो इस वजह से, इसको अवॉइड करने की वजह से, चूंकि आगा सिस्तानी का जो फतवा आ गया था उससे हमें ये एडवांटेज थी कि हम रात में साए में सफर कर सकते हैं। तो हम लोग, और ज्यादातर हम लोग मतलब इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाते थे कि हम लोग फजर से पहले तक हदूद मक्का में दाखिल हो जाएं, ताकि वो जो है दम का जो सिलसिला है वो ना हो सके। क्योंकि वो दम को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था मौलाना साहब ने। उन्होंने कहा कि दम बिल्कुल ऐसा ही है, गो के दम देने के बाद आपका हज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल यूं ही है कि जैसे आपने बिल्कुल उजला सफेद लिबास पहना हो और उसमें कोई दाग लग जाए, गो के आप उसको साफ करने की कोशिश भी कर लें लेकिन वो दाग वाज़े नजर आता है, वो मालूम लगता है। इसी तरीके से अगर आप पर किसी भी गलती की वजह से दम आ जाए तो दम तो आप दे देंगे, आपका वो हज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो एक नुक्स, एक दाग उसमें बाकी रह जाएगा जो कि उसकी खूबसूरती को इफेक्ट करेगा। बहुत अच्छा। मैं साहब दम का पूरा मफहूम मुझ पे दम का वाजे नहीं हुआ, ये क्या कुफारा होता है या कुफारा? जी कुफारा है। अभी आपने मतलब वो कुर्बानी का जिक्र भी किया कि, तो मैं एक चलते चलते एक सवाल करता चलूं कि कुर्बानी जो है आप लोगों के लिए, खास तौर पर ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हज पे जो भी जाते हैं, तो उस जमाने में जब आप लोगों ने हज किया तो कुर्बानी के जानवरों के साथ आप कुर्बानी करते थे, या अब तो वो टोकन का तरीका इजाद हो गया है कि वो टोकन के पैसे जमा करा दिए वो हो गया, तो ये क्या सिलसिला रहता था? जुल्फकार भाई, असल में जो टोकन का सिलसिला है उसमें बहुत सारे शुबहात हैं। बेहतर यही है कि आप अपने हाथ से या अपनी नियाबत में कुर्बानी करवाएं, क्योंकि जब तक आपको ये इतला न मिल जाए कि आपकी कुर्बानी का अमल हो गया है, आप एहराम नहीं उतार सकते। तो वो इतला करते हैं कि जो जी हाँ, नहीं वो तो उनका मालूम नहीं कि वो क्या इतला करते हैं, कैसे वो करते हैं। उसमें सकम हो सकता है कि मतलब मिसाल के तौर पे आपको टाइम दिया गया कि 6:45 पे हो जाएगा, लेकिन किसी भी वजह से वो ना हो सका, तो वो इफेक्ट तो बहरहाल आप पर, गो कि आपकी गलती नहीं है लेकिन आप पे इफेक्ट तो आएगा। उसका बेहतर हल हम लोगों ने ये निकाला था कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक ग्रुप की सूरत में जो है वहां पे चले जाते थे, जहाँ पे बकरे होते हैं, जानवर होते हैं, वहां पे ग्रुप की सूरत में चले जाते थे और वो कुर्बानी
की लिस्ट उनके पास होती थी सारे हाजियों की। वो एक एक हाजी की कुर्बानी करते जाते थे और वो टेलीफोन पे इन्फॉर्म करते जाते थे कि जी फलां साहब के नाम की कुर्बानी हो गई, फलां अच्छा। साहब के नाम की कुर्बानी हो गई। तो वो उससे ही होता था कि आदमी जिसका वो होता जाए वो अपना हल्क यानी जो बाल कटवाने होते हैं वो बाल कटवा के और वो उसके बाद एहराम उतार सकता था। अच्छा 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 अच्छा। इस सिलसिले में फतवा क्या है, ये जो अगर टोकन के जरिए जो हम हज के पैसे, जो कुर्बानी के पैसे दे दें, तो हमारे मर्जाओं का क्या फतवा है इसमें? वो इसको एग्री करते हैं, क्या है? मेरे ख्याल में ज्यादातर मराजी का जो है वो इसमें यही है कि आप कुर्बानी खुद करें। खुद करें। मेरे ख्याल मगर से ज्यादातर अहले तशरीह हजरात ये करते भी खुद ही हैं। मतलब उस जमाने में तो बिलूम यही देखा गया था कि लोग खुद जाके अपने सामने कुर्बानी करते थे। नहीं, देखिए, अब जाहिर है कि वहां का मसला अपनी जगह। अब हम यहाँ टोरंटो में बैठे हुए हैं, हम नहीं कर सकते कुर्बानी। मतलब यह है कि हमें गांव गोठों में जाना पड़ेगा, या 2-4 आदमी का एक ग्रुप मिलके चला गया, ये तो बड़ा इंडिविजुअल है। मगर यहाँ हमारे मोमिनीन भी, वो जो उनके रेगुलर जो उनके मीट मर्चेंट है, उनके पास जाते हैं। उनके पास अब लिखा होता है कि भाई ये बकरे के ये और हिस्से के ये और गाय के इतने, तो लोग उनको दे देते हैं और बकरा ईद के रोज या उससे दूसरे दिन जाके वो अपने गोश्त ले आते हैं। फखर भाई, तो यहाँ भी हो रहा है। जुल्फिकार भाई, इसका मैं आपको जवाब ये दूं। देखिए, टोकन में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप को ये नहीं मालूम है कि ये अहले सुन्नत की तरफ से हो रही है या अहले तशरीफ। जी, यही मसला है इसके अंदर। आपने अच्छा वो सवाल किया। अब मैं बैसियत शिया जब कुर्बानी कर रहा हूँ तो मुझे उस जानवर की तमाम चीजों को मुझे फॉलो करना होगा जो कुर्बानी के लिए लाजमी है। तो वो मैं बकरा जब लूंगा तो उसी हिसाब से फिर जो है मैं वो कुर्बानी मुझे करनी है। तो मकसद ये नहीं है कि भाई गोश्त ज़ाया हो रहा है तो भाई हम टोकन के जरिए करवा दें और इस तरह हो जाए, बकरे वहां जला दिए जाते हैं। लेकिन मेरा जो मसला है, मुझे अपने जो उसकी तमाम कंडीशंस हैं कुर्बानी की, वो मुझे फॉलो करनी है। अब वो अगर मैं कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और अगर टोरंटो में बैठ के भी कोई आदमी अगर कुर्बानी दे रहा है और लेकिन वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, और तो उसकी वो कुर्बानी जायज ही नहीं होगी। जब वो कुर्बानी देखे ना, जो हमारा मीट मर्चेंट है, जिसने हमसे कहा कि हाँ जी आपके नाम की कुर्बानी हो जाएगी, तो अगर हम मुझसे कहेंगे कि भी जानवर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर वो प्रॉमिस कर लेता कि नहीं जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसमें कोई खामी नहीं होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ अहले सुन्नत में और हम में थोड़ा बहुत फर्क है कि कुर्बानी के जानवर कैसा होना चाहिए। बाकी तो जबरन सब चीज, अगर वो उसने एतराफ कर लिया, हमें कह दिया कि जी नहीं जी हम आपकी मर्जी के मुताबिक कुर्बानी करेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं होना चाहिए, या देखना जरूर है कुर्बानी। जुल्फिकार भाई, एक अर्ज करना है कि जैसे मैं कुर्बानी हर साल करता हूँ तो अहले तशरीह की तरफ से जब कुर्बानी करवाई जाती है और उसका जितना भी गोश्त होता है वो मुस्तकीन में तकसीम किया जाता है। जी अच्छा। ये आपने बताया कि हमारे यहाँ टोरंटो में भी कोई इदारा है। मैं बिलग्रामी साहब, एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जी करें, फरमाइए। कुर्बानी जो शिराजी साहब ने फरमाया हज के हवाले से और मतलब टोरंटो के हवाले से जरा सा फर्क उसमें यह है कि कुर्बानी के हो जाने से जो अगले 2 मरहले हैं, यानी हल्क होना, बाल कटवाना और एहराम से बाहर आना, ये 2 बहुत ही अहम मरहले हैं जो इमीडिएटली कुर्बानी से लिंक्ड है। जैसे कुर्बानी हो जाए उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं। तो वहां पर बहुत बेहतर यही है कि अपने सामने कुर्बानी करे आदमी, और ताकि उसको पूरा यकीन हो, या जिसका वो जिसकी तरफ से कर रहा है उसको पूरे एतमाद से बता सके कुर्बानी हो गई है। तो लेकिन जैसे आपने फरमाया टोरंटो में ये टोकन सिस्टम कुछ हद तक चल सकता है अगर जिम्मेदार मीट मर्चेंट है। एक और चीज है जो मैं बहुत चाहता हूं कि उस पे इजहार करूं, और शिराजी भाई भी इससे जी बिल्कुल करें। आपने एक सवाल पूछा था कि हज का सबसे मुश्किल मरहला और
सबसे क्या आसान। उस सिलसिले में मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि हज का सबसे मुश्किल जो मरहला है वही सबसे आसान मरहला भी है। वाह, वो ये है कि बार बार ताकीद की गई है कि अपने नफ्स पे काबू रखो, अपने मिजाज पे काबू रखो, अपने गुस्से पे काबू रखो। वाह, चींटी तुमसे ना मरे, चींटी भी पाँव के नीचे ना आए, वाह, मिजाज बरहम ना हो, वरना हर चीज पे एक दम होगा, बेशक दम बेशक। वाजिब है। तो और ये ही वो चीज है जिसकी वहां पर बाज सूरतों में बाज हजरात की तरफ से सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। यानी 2-3 मरहले जब गुजर जाते हैं तो अदम बर्दाश्त एक ऐसे मकाम पे पहुंची हुई होती है कि वो जज्बा खुलूस और अकीदत अपनी जगह, लेकिन बात बात पर उलझना लोगों का एक दूसरे से, वो बड़ी ही अफसोसनाक चीज होती है। मुंतजमीन से उलझना, वो बड़ी जो इंतजाम कर रहा है 50 आदमियों का, उससे अगर थोड़ी सी ऊंच नीच इंतजाम में हो जाए तो वो असल में मतलब बाज हजरात टूरिज्म और पिलग्रमेज में फर्क नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से यही आसान तरीन और सबसे अहम है, अपने मिजाज पर काबू रखना, और वो हर लम्हे पे हो, हर कदम पे है। बिलग्रामी साहब, जैसे अक्सर हमने सुना जो सवाल चल रहा है मुश्किलात और आसानी का हज के दौरान, तो हमें लोगों ने ये बताया कि जब हम शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, वो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। तो क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही है। यानी मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि 93 में मैंने जो दूसरा हज किया तो मुझे बड़ी हैरत होती थी। मार्किंग्स वगैरह सारी साइनेज लगी हुई थी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है और दूसरे एंड से उतर के अपने खेमों की तरफ चले जाना है जो मिना के अंदर थे। लेकिन लोग जैसे ही कंकरी मारते थे वो वहीं से पलट जाते थे। तो बड़ी हैरत होती थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 93 में मैंने हज किया और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यहाँ ऐसे कोई एक्सीडेंट कैसे नहीं होता। 1-2 एक्सीडेंट हुए कि लोग कुचले गए ये, लेकिन कोई बड़ा हादसा उस वक्त जहन डरता था कि होगा। और फिर इत्तेफाक ये है कि 94 के अंदर एक जबरदस्त वाकया हो गया स्टैम्पीड का, जिसके अंदर के कोई 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। तो कानून की पासदारी करना बेंत, अब वो जरा सा वो डायरेक्शंस देते हैं कि जब आपने एक मर्तबा कंकर मार दिए तो फिर आप ऊपर से घूम कर आए। अच्छा, वो जरा सा फासला लंबा हो जाता था वापस खेमों में आने के लिए, तो लोग वहीं पर पलट जाते थे। और तो वो शॉर्टकट लेते थे, तो उसी में ही वो तो सारा न सिर्फ मुश्किल होता था बल्कि खतरनाक तरीन मरहला होता। जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आते हैं। तो जी नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। अहले अहले अज़ा के दिन जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी हमारे पास बिलग्रामी साहब बता रहे थे मुश्किलात और आसानियां के हज के दौरान। तो मैं शिराजी साहब के पास आऊंगा, यूं कि शिराजी साहब इस सवाल का जवाब बड़ा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। वो ये कि 9 ज़िलहिज को हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो आप लोग हज के दौरान उसको कैसे मनाते हैं या क्या करते हैं? ये तो सब तीनों अपने अलग अलग तरीके से गए हैं, तो सभी मुझे इस बात का जवाब दें कि भी वो कैसे करते थे, या टाइम नहीं मिलता था, क्या इस सिलसिले में क्या रहता था सिलसिला? असल में 9 ज़िलहज्जा जो है वो यौम अरफा है। अच्छा। तो यौम अरफा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारे जितने ग्रुप्स हैं
और मोस्टली जितने शिया ग्रुप होते हैं जो इंडिया पाकिस्तान से या लोकली जो आए हुए होते हैं, वो एक जगह पे क्लस्टर्ड होते हैं, एक ही जगह पे जमा होते हैं। तो जितनी शानदार तरीके से ये शहादत जो है और इसकी मजलिस अरफा में होती है, मैं ख्याल है दुनिया में और किसी जगह वैसी सुभान अल्लाह, उस शान और शौकत की वो नहीं मजलिस होती है। सुभान अल्लाह, आपने तो ये खलिश दूर कर दी कि बड़े जहन में थी कि आज पे जाएं तो बीच में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का दिन होगा, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप दोनों हजरात भी, जाफरी साहब और बिलग्रामी साहब, आप लोग भी मतलब इत्तेफाक करते हैं कि आपने भी वहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही तजुर्बा है। भरपूर मतलब मजालिस हुई वहां पर। और ये मतलब ये मैदान अरफात में होती है? जी जी, मैदान अरफात में। मैदान अरफात में मतलब मैदान अरफात उस वक्त वो मैदान है कि जिस पे रब्बुल इज्जत की डायरेक्ट नजर होती है उस वक्त, वो डायरेक्ट लिंक में होता है उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो इबादत वहां पे होती है वो डायरेक्ट मतलब इबादत कबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम होता है मजालिस का। और कोई ऐसा सवाई एक चीज के कि जो वहां पे मुश्किल है वो है मातम। वो तो जाहिर है, मातम भी बैठ के मातम हो जाता है, एक आध नौहा, ज्यादा नहीं, तो बैठ के हो सकता है। लेकिन मजलिस जो है वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ, शान और शौकत के साथ होती। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा जहन में सवालात हमारे हैं जो मोमिन जाते हैं। अच्छा, एक चीज, हम हज के दौरान बहुत सारे अल्फाज जो सुनते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नए होते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं गए वहां पर मक्का में हज पे या उम्रे पे, उनके लिए कि कोई मजदलफा भी कोई जगह है, अरफात भी कोई जगह, मैदान अरफात भी कोई जगह है। तो ये मजदलफा क्या है? मुजदलफा असल में जब आप यौम अरफा गुजार चुकते हैं, यानी 9 ज़िलहज्जा का टाइम जब आप मगरिब तक वहां पे गुजार लेते हैं, मेन जो अरफा, जो मेन हज है वो बेसिकली यौम अरफा का दिन है। यानी 9 ज़िलहज्जा को ज़ोहरैन की नमाज से लेके मगरिबैन की नमाज के दरमियान का जो वक्फा है वो आपको वहां पे ठहरना, मैदान अरफा में ठहरना जरूरी है। आपकी वहां मौजूदगी जरूरी है, वरना आपका हज जो है वो नन एंड वाइड हो जाएगा। अच्छा, जब वहां से आप फारिग होते हैं मगरिब के बाद, तो आप, ये मुजदलफा एक जगह है जो मिना और अरफात के दरमियान में आती है। मिना और अरफात के दरमियान में आती है। मिना और अरफात का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर तकरीबन दरमियान में आती है। और ये वो वादी है जो जहाँ पे ज्यादातर पहाड़ हैं। यहाँ से आपको कंकरियां चुननी होती हैं जो आपने शैतान को मारना होती है। अच्छा। तो वो कंकरी चुनने के लिए आपको वहां रुकना है, आपको वहां पे स्टे करना है। और उसके बाद नॉर्मली वहां से लोग फजर की नमाज पढ़ के मुजदलफा से निकलते हैं। मुजदलफा और मिना की सरहदें जो हैं वो मतलब मिली हुई होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो मुजदलफा के एंड पे जाके जमा हो जाते हैं, ताकि जैसे ही वो नमाज फजर से फारिग हों तो वो मिना में दाखिल हो जाएं और जाके बाकी फराइज जो उनके हैं, हज के अरकान जो हैं, उनसे फारिग हो जाएं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है क्या आप लोगों ने तो 2-2, 3-3 हज किए हैं, कि आप, जाहिर है टाइम की कमी है कुछ, कि आप सिर्फ मक्का में आए और हज किया और मदीने नहीं गए, ऐसा होता है? ऐसा हुआ है क्या? जी, नॉर्मली जो लोग जद्दा से या जो लोकल जो वहाँ के वतनी जो होते हैं, जो वहाँ के रिहाइश पजीर होते हैं, वो उस वक्त मदीना का रुख नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे इबादत कर सके, उन्हें मौका मिल सके। क्योंकि अगर हम लोकल भी वहाँ पे जाना शुरू कर दें उन दिनों में तो रश बढ़ जाएगा, और जितना रश बढ़ेगा उतनी ही प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होगी, ज़ियारत करने में तकलीफ होगी, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल होंगे, बाकी सारे मसाइल होंगे, रोडों पे कंजेशन बढ़ जाएगा।
تو اس وجہ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہوتا ہے، ہم اس کے فوراً بعد نہ صحیح کچھ عرصے کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہم جا کے زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں کے لوکل رہنے والے ہیں، کیونکہ جعفری صاحب اور حسن بھائی دونوں جو ہیں یہ خاصے ڈسٹینس پہ تھے، تو ان کے لیے جانا بہت مشکل تھا، ورنہ وہ لوگ جو کہ جدہ میں رہتے ہیں ان کے لیے تو کم از کم 10 دن میں 15 دن میں ایک دفعہ مدینہ اور ہر ہفتے مکہ جانا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے۔ واہ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتایا۔ تو ایک چھوٹا سا سوال میں اصغر جعفری سے بھی کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کے شیراز صاحب آپ کے پاس آؤں گا، تھوڑا سا مجھے سمجھنا ہے، حج کے ارکان کا ایک مسئلہ ہے۔ تو جعفری صاحب یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے رہے، آپ تینوں حضرات بھی اتنے عرصے رہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ عربی بھی اور وہاں کی زبان جو ہے نا وہ اس سے بھی آپ آسانی ہو جاتی ہوگی بولنے میں، تو وہ حج کے دوران تو یہ عربی زبان کا سمجھنا اور بولنا یہ کچھ سہولت فراہم کرتا ہے وہاں پہ؟ جی ذوالفقار بھائی، کیونکہ میرا ریموٹ ایریا تھا اور زیادہ تر عربی بولنے والے ہی تھے، جدہ اور ریاض دمام کی طرح ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو اس لیے عربی بولنے میں مجھے کافی عربی بولنے سے مجھے کافی فائدہ بھی رہا اور عربی زبان سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ تو اس میں سب سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، چیک پوسٹ پہ ہیں، اور تو وہاں پہ ان سے گفتگو کرنے میں آپ کوئی مسائل نہیں ہوتے عربیوں سے، اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آرام سے۔ اور یہ کہ کیونکہ ہم طویل سفر کرتے تھے، ہم رستوں سے گزرتے تھے، تو ہمیں وہاں پہ عربی بولتے تھے اور لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی، تو ہمیں وہاں ایسے کوئی مسائل نہیں ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ان کو بھی انگلش نہیں آتی، تو وہ پھر تھوڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر جب آپ مدینے میں آئیں اور پھر آپ جائیں جدہ بھی جائیں آپ یا مکہ جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو عربی بولنے میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ جو بھی سرکاری لوگ ہیں ان سے گفتگو شنید میں آپ کو تھوڑا فائدہ رہتا ہے، اور پھر آپ کو ایسے مسائل نہیں ہوتے۔ ایک دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں جو زیارتیں ہیں ہم نے کی، تو وہاں پہ ایک صاحب ہوتے ہیں ارشاد بلوچ صاحب، تو وہ بہت محب اہل بیت تھے پہلے سے بھی، لیکن ان کو اہل بیت کے توسط سے انہوں نے دعائیں مانگی اور ان کو 25 سال کے بعد اولاد نصیب ہوئی۔ تو انہوں نے وہاں پہ مدینہ میں باقاعدہ امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، جس کی ہم نے زیارت بھی کی، اور وہ ان کا امام بارگاہ بہت اچھا ہے۔ تو ماشاءاللہ، اور پھر لوگوں کو زیارتیں بھی ایسی جگہ کراتے ہیں جو کہ زیارتیں اب نظر بھی نہیں آتی، وہ بتاتے ہیں کہ جو آل سعود نے منہدم کر دی ہیں اور وہ ان کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہا، وہ سب جگہ پہ جا کے دکھاتے ہیں، سارے مقامات دکھاتے ہیں، باغ فدر بھی دکھاتے ہیں، اور جتنی بھی ائمہ معصومین کی جو بھی باقیات ہیں وہاں پہ، جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ جہاں رہے ہیں، وہ مقیم رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کی زیارتیں کراتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا۔ تو میں اب آخر میں شیرازی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال جو ہے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو کم از کم اس پروگرام کی توسط سے لوگوں کے ذہن میں وہ آ جائے گا۔ ایک فرق ہمیں بتائیے، کیا چیز ہے حج تمتع کیا ہے، اور یہ جو ہے طواف النساء یہ کیا ہے اور کب ہوتا ہے؟ یہ حج کے ارکان میں یہ چیز شامل ہے۔ حج تمتع جو ہے یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اچھا، حج تمتع جو ہے، پہلے یہ وہ حج ہے کہ جو رسول اللہ نے جس کا حکم دیا، بعد میں کچھ خلفاء نے اس کو منع کر دیا، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد امام علی کے دور میں دوبارہ اس کو حج تمتع کو شروع کیا گیا، اور ایسا شروع کیا گیا کہ اب حج تمتع آرام سے ہوتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمرہ تمتع اور حج ایک ہی سفر میں کر سکے۔ اچھا۔ اور طواف النساء جو ہے، یہ وہ طواف ہے کہ جو آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے جب آپ عمرہ اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں،
जब जो तकसीर जिसे कहा जाता है, जब आप सही करके सफा मरवा की सही करने के बाद मरवा पे पहुंच के जब अपने बाल आप काट लेते हैं, ये बाल या नाखून या जो भी चीज मतलब जो भी आप वो तकसीर करना चाहें, जब आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे बाज लोग जो हैं वो चंद बाल काटते हैं, बाज लोग जो हैं वो नाखून काटते हैं, बाज लोग अपना सर मुंडवाते हैं। वो आप करने के बाद आपको दोबारा हरम में जाके उसी उसमें आपको तवाफुन निसा करना होता है। जब तक आप तवाफुन निसा ना कर लें उस वक्त तक आपके लिए आपकी ज़ौजा हराम होती हैं, क्योंकि जब आप एहराम बांधते हैं तो आपकी ज़ौजा जो हैं वो आपके लिए हराम करार पा जाती हैं। वो आप उनसे मतलब ताल्लुक नहीं कायम कर सकते। जी। तो आपको उसको ख़त्म करने के लिए आपको तवाफुन निसा करना होता है। जब आप तवाफुन निसा से फारिग होते हैं फिर आप अपनी दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं असगर जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हैदर रजा शिराजी साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। हसन बिलग्रामी साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही हमें उम्दा मालूमात फराहम की और हज जैसा मसाइल से हमें आगाह किया, क्योंकि आप वो लोग हैं कि जो वहाँ पे रहे हैं, रहते हैं, हज भी किया है, उम्रा भी किया है और इन मसाइल को बखूबी समझते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि एक तो हज के दिन है, ये जब प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तो जिल हिज का महीना होगा और जिल हिज के बकरीद के बारे में ही बात हो रही होगी, तो हमने उससे मुत्तसिल रहने के लिए उस वक्त से तो हमने ये प्रोग्राम अदा किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। बहुत शुक्रिया। अब नाजरीन अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सी मालूमातें मिली होंगी। तो मैं फिर आपसे खुदा हाफिज करता हूँ और फी अमानुल्लाह। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। अहले अज़ा